वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और दिनांक 30/10/2025 को भारत सरकार ने आपको 53वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, युवाओं के लिए प्रेरणा की बात है। अब मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दे। एक बार जोरदार तालियां मुख्य इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस डी के उपाध्याय, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट, my brother judges, Justice Mahesh Tripathi in absentia, बुलाना पड़ा। Brother Rajra on the dais, my sister and brother judges of Allahabad High Court on the dais, former judges, Registrar General and other officers of the High Court. Pandit S. Chandra ji, President of our Bar Association, Lalit Tiwari ji, General Secretary, Shailendra Sharma Adil ji, Vice President, leaders and members of the Executive Committee of our Bar Association, very distinguished senior advocates of our Bar Association, Sri Kaliya ji, Mishra ji, Ashok Nigam ji, Arif Khan Sahab, Mishra ji, Raghvendra ji, Pandey ji, Raj Sahab, distinguished members of the Bar Association. We also have representative of the Supreme Court Bar Association here, Mr. Gaurav Bhatia, Senior Advocate, Mr. Sanjesh Dubey. Office Bearer of the Supreme Court Bar Association is also present. Ladies and gentlemen, सबका मनोवर भाव से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया। आप सबको 125 साल गौरवान्वित इतिहास, सफलता की इतनी बड़ी ऊंचाइयां छूने पर भी आप सबको बधाई देता हूँ। 125 साल संस्था का जीवन हो, इतिहास इसके संघर्ष को, इसकी कमिटमेंट को सभा के रूप में सबके सामने पेश। Bar has produced successfully notorious eminent jurists. Great reference to was made by General Secretary of the Bar Association and previous speakers of the bar, including Justice D.K. Upadhyaya. Confined to only the jurisprudential group of Allahabad High Court. Contribution to the movement, of the Constitution, the best of the parliamentarians,
presenting the law makers in the State Assembly, introducing the statesmanship and the leadership of the legal fraternity. Something which cannot be measured in words and probably difficult for any speaker to define its contours. Natural. The completion of this period of 125 years. But या 2012 प्रोफेशनल बात पे सदस्यों से मिला, मिला, जो मार्गदर्शन मिला, जो अफेक्शन जो लव यहाँ पे मिला, मेरा जीवन भर लेवल रहा। High Court was president of the Judicial Academy. Then again I got a chance to Lucknow as a resource person and spend some good time with the relative here as well as the judicial officer, not only of Uttar Pradesh but the judicial officers of various participating states. तो मेरा बाहर से भी संबंध रहा, साहिबान से भी ऑफिसर के साथ। अब मैं and with your ओकेजन पर ही मैं आपसे मिल पाया। प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो मुझे लगा कि आप सिर्फ खुशियां मनाने के मूड में ही होंगे। मुझे बैठे बैठे ख्याल आया है तो पुरानी कहावत है काफका साहब की, जो वकील 10,000 पेजों का डॉक्यूमेंट तैयार करके बोलेगा ये मेरा ब्रीफ है। प्रधानमंत्री को इस बात की बधाई दूंगा मेरे शब्दों में बात रखी। दो-तीन चीजें उसमें मैं बोलूंगा। सारे ऐसे विषय होते हैं हमें लगता है घर में, परिवार में, आसपास में हो जाती है। ऐसा प्रकृति का नियम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नहीं ऐसा कुछ बनाया हुआ है पूरी परिवार में माइंडसेट नहीं होता, डिफरेंस हो सकते हैं। व्यवहार दुनिया से परिवार के अंदर और परिवार डिफरेंट हो जाता है। तो हमें ये परिवार का ये नेचर का जो गिफ्ट है उसको उस ऊपर वाले की शक्ति ने जो हमें दिया है उसको एक वरदान मान करके हम चलें। हमें कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, बेंच का जो रिश्ता है
कई बार ऐसा लगता है कि बार बेंच का डीएनए सेम है। और किसी भी रूप में कोई भी बेंच में आएगा, सर्विस के कोटा से आएगा या बाहर से एलिमेंट होगा, अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर का है और बाहर की ही देन है, बाहर का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है बेंच की साइड में भी और दूसरी साइड में भी। अल्टीमेटली able to move towards the basic goal and the basic goal and the basic premise on which we really survive and sustain the quest for justice. Quest for justice. The person who is the most in need. गरीब आदमी असहाय, जिसके लिए लीगल सिस्टम तो अपने अधिकारों को मिलने में कहीं आने ना आए, उसके अधिकारों में उसको कोई कोर्ट कचहरी में आने में कोई समस्या ना हो, उसकी उस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस सबसे पहला पड़ाव बार है। कोई भी आदमी ये बोलता है कि मैं किसी गांव में, शहर में, किसी नुक्कड़ पर अगर वो बोलेगा कि मैं अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। जाएगा साल के बाद बार जो है, बार फाइट फॉर कॉज ऑफ जस्टिस। इसलिए बार का सेंसिटिव होना, बार का ह्यूमन अप्रोच रखना, बार का आदमी का समाज का उनको समझने की बात में होना इतना ही आवश्यक है जितना कमिटमेंट ऑफ द बेंच को भी। अगर बार में वो सेंस है, बार में वो कमिटमेंट है, तो बेंच से भी वो आ जाएगी। इसलिए मैं दोनों को एक ही रूप में देखता हूँ। बार और बेंच का रोल डूइंग जस्टिस इम्पोर्टेंट। एक लाइन में इस बात का बस मैं आंसर दूंगा। का एक हिस्सा है, मैं उसको थोड़ा सा इस रिश्ते में डाल रहा हूँ। हमें रिश्तों को संभालना है मोतियों की तरह, हमें रिश्तों को संभालना है मोतियों की तरह। ये बार और बेंच के रिलेशन की बात कर रहा हूँ। कोई गिर भी जाए तो कर उठा लेते हैं। सिस्टम में आपने 101 में ये बात बनी, आपने ब्रिटिश टाइम में आपके मेंबर्स ने जिन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश किया, लोगों ने उस टाइम के सिस्टम को देखा। वही लोग होंगे जिन्होंने आजादी के दंग में अपनी आवाज ऊंची उठाई, लड़ाई में शामिल हुए। इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपने आप को जो भारत के नागरिक ने, भारत के लोगों ने अपने आप को जो अधिकार, जिम्मेवारियां उसमें अपने आप को दी, अधिकारों की पूर्ति के लिए भारत सिचुएशन इंडिया के इतिहास में मानी जाएगी, याद की जाएगी। उसमें मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, और बात का नाम लीडर के तौर पर बार की इमेज एक पीपल के पेड़ की इमेज है, जो हमेशा दुनिया रहता है, जो हमेशा समाज को, पृथ्वी पे प्राणी को और हर किस्म के प्राणी को कुछ न कुछ देता है। आपकी बात भी होती, आप जिन वैल्यूज को लेकर के, कमिटमेंट्स को लेकर, जिन इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स को लेकर के, जो स्टूडेंशियल डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने जो कोर्ट में और कोर्ट के बाहर
लेकिन प्रोफेशनल जो सर्विसेज की है उसका आपको और ज्यादा दर्जा आगे बढ़ाना है। 125 साल की जो आपकी हिस्ट्री है इसमें आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। इस इंट्रोस्पेक्शन में आप देखेंगे कि प्रोफेशन के सामने आजकल नए नए चैलेंजेस क्या आए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है आफ्टर प्रोफेशनलिज्म। और प्रोफेशनलिज्म क्या बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी है, एआई है। अब आप देखेंगे कितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का आ गया है। तो आपको नई जनरेशन ऑफ लॉयर्स को इन चीजों के लिए बहुत ही वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा। इंडिया अगर इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है तो मान करके चलिए कि कंट्री में कमर्शियल इंटीग्रेशन बढ़ेगी। बाहर के लोग जो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, हमारे अपने लोग जो अपनी इनकम जनरेट करके जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस में सर्विसेज में जो इन्वेस्ट करेंगे, बट नेचुरल है कि वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कमर्शियल इंटीग्रेशन को जनरेट करें। कमर्शियल इंटीग्रेशन के लिए आपका बहुत ही स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बात के लिए कि कोई ये बोले कि लखनऊ में कमर्शियल इंटीग्रेशन का मुकदमा करने के लिए प्लान जगह से किसी वकील को लाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास लिटिगेंट्स के पास यहाँ की लंबी लिस्ट होनी चाहिए कि अगर हम लखनऊ में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे वकील हैं जो हमारे मुकदमों को बखूबी लड़ेंगे और हमारे को बहुत बढ़िया प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान करेंगे। आपको इसके लिए जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको आपको इस इनपुट को लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर मेंबर्स ने बात की, मैं और इसके साथ अपील करूंगा, मेरी उनसे बहुत बड़ा उनको एक मैं सजेशन जरूर देना चाहूंगा। जो मेंबर सीनियर है बात की बंधन के पीड़े हैं, इनके अनुभव से, इनके एक्सपीरियंस से, इनकी स्किल से, इनकी आर्ट ऑफ एडवोकेसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब ये कोर्ट में धीरे से खड़े होकर के 2 लाइन की कोई आर्गुमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड 2 लाइन के पीछे राज क्या है। कई बार आर्ट ऑफ एडवोकेसी में बहुत कम बोलना भी पार्ट ऑफ एडवोकेसी है, बहुत ज्यादा बोलना भी पार्ट ऑफ एडवोकेसी। ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। एक्सपीरियंस हमारे वो सीनियर बात के बड़े बुजुर्ग हैं, इन लोगों के पास वो एक्सपीरियंस की धरोहर है। इसका न्यू जनरेशन के लॉयर्स धरोहर को इस्तेमाल करें और उसका एक आपका जो सक्सेसर प्लान है वो आपका बना रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो ट्रिक ऑफ ट्रेड जिनको बोलते हैं, वो सारी पास हो। ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी आप अपने आप में जागरूक रहिए और इसके लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट कीजिए कि सीनियर लोग अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को नेक्स्ट जनरेशन को बेटर पास ऑन करें और उसको दें। ये भी एक बात के लिए आपको कुछ एक्सपेक्टेशन सिस्टम में होती है। हर बार एसोसिएशन में कोई भी बार एसोसिएशन है उसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाओं को रखना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमेशा एक अवसर होता है। उसका हमेशा ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वन शुड ऑलवेज वेलकम आपकी तरफ से सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए जो भी कंस्ट्रक्टिव कभी सजेशन कोई आएंगे। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम आप पार्ट हैं, आप उसके इंटीग्रल पार्ट हैं। आप प्राउडली फील कर सकते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड। उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए और उस सिस्टम के सामने जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे मीट आउट किया जाए, उन चैलेंजेस को कैसे उनका रिस्पॉन्ड करें, इसके लिए कोई भी बात सूचित नहीं भी अच्छा अगर कंस्ट्रक्टिव सजेशन देती है तो इसका सिस्टम वेलकम करेगा, उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली कंसिडर करेगा।
आपकी बात का कंट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखा जाएगा। आप कीजिए निसंकोच भाव से, कोई भी आपके सामने कोई ऐसा बहुत अच्छा सजेशन लगे जो आपको लगे कि इससे सिस्टम में बेटरमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, ऐसा कोई होगा तो हम सिस्टम में, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पर है चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल, हम ऐसे किसी भी सुझाव का पूरा मान सम्मान देंगे और उसको आपको सब एक बात याद रखनी है। आपकी भी बात के लिए, आपके हर सदस्य के लिए एक छोटी सी नरम की एक और लाइन बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी आज थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे दिल्ली जाना है, कल वर्किंग डे है और इसके लिए आप थोड़ा सा आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन आज का जो टाइम की कमी रही है ये आपको कभी कंपनसेट करूंगा। बार के हर मेंबर को एक ही बात समझ लेनी चाहिए, तो ये मैं रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना, मैं तो रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना था, मुझे जो समझते रहे कि चिराग हो। ये आप चिराग नहीं, आप बहुत बड़ा रोशनी का एक वो है, तो आप किसी तरह सोसाइटी को एनलाइटन कीजिए, एनलाइटन करते रहिए। हम आपकी हर बात का, हर सुझाव का, आपकी अपेक्षाओं का पूरा सम्मान करेंगे। मैं अगेन थैंकफुल of inviting me on this great occasion and you allowed me to participate in these great celebrations. I will continue to have the fond memories of spending this time with you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके उद्बोधन आशीर्वाद से हम सब सिंचित हुए। ऐसा लगा ही नहीं कि आज प्रधान न्यायाधीश हमारे बीच में है, ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे बड़े भाई हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की तरफ है। महोदय, अवध बार एसोसिएशन पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन की तरफ है, वहीं उसने अपना अधिवक्ता कल्याण निधि एवं हिस्ट्री गैलरी का शुभारंभ करना है, जिसका उद्घाटन महोदय आपके कर कमलों से बटन दबा के करना है। फिर हम लोग आपको मोमेंटो प्रस्तुत करेंगे। कृपया आप सब बैठे रहें कि 5 मिनट का कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि महोदय, आप लोग कृपया बैठ जाइए, 5 मिनट और। कैमरा श्री अखिलेश जायसवाल जी, रमेश तिवारी जी, अवनीश दीक्षित जी एवं प्रधान सिंह भानु जी कृपया बुके लेकर के मुख्य अतिथि महोदय को बुके प्रस्तुत करने की कृपा करें। शिवम जी, अवध बार एसोसिएशन की तरफ से अवध बार के अध्यक्ष और महासचिव के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो, अवध में है तो अवध की गरिमा का प्रतीक भगवान श्री राम जी का मंदिर प्रस्तुत किया जाएगा। उसी के साथ अन्य अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह, उसके बाद हम लोग वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी का